Dear students, I am Dr. Suman Sharma. I think you are studying well with the preparation according to the syllabus. We are giving you the concerning presentation covering the syllabus via video lectures and virtual classes. Students, in the last lecture, we have studied the characteristic properties of pyridine. Today we will extend this study for indole. So let us start the lecture on indole. The fusion of benzene ring to the phase B 2,3 bond or alpha beta positions of the pyrrole ring gives benzo B pyrrole or indole, right? Now empirical formula of indole is C8H7N, right? Now indole is a fused aromatic ring system, also known as benzo B pyrrole, right? In indole, all ring atoms, 8 carbons and 1 nitrogen, are sp2 hybridized. Okay? Two sp2 orbitals on each atom overlap with each other to form the carbon-carbon and carbon-nitrogen sigma bonds. Now, the third sp2 orbital on each ring atom overlaps with an s orbital of hydrogen and forms CH and NH sigma bonds, right? The unhybridized p orbital of nitrogen is occupied by the nitrogen lone pair of electrons, right? Each carbon atom in the ring possesses one unhybridized p orbital containing one electron, and those are perpendicular to the plane containing the sigma bonds, right? Overlap of these p orbitals produces delocalized pi molecular orbital containing 10 electrons, right? 8 electrons from 8 carbon and lone pair of electrons from nitrogen, right? 2 lone pair of electron from nitrogen atom, right? Indole shows aromatic properties because the resulting molecular orbital satisfies the Huckel's rule 4n plus 2 pi rule. Okay. The nitrogen lone pair is released into the aromatic system. Here is the released aromatic system with lone pair of electrons present on nitrogen, right? Come to the next slide. Then preparations of indole. Lip synthesis, right? In this method, orthoaminochlorostyrene is heated with sodium ethoxide at 160 to 170 degree centigrade. And now here is the reaction. जब orthoaminochlorostyrene को सोडियम इथॉक्साइड के साथ हीट किया जाता है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इंडोल बनता है, राइट? Now second is Fischer indole synthesis.
Pyruvic acid is first treated with phenyl hydrazine to form the corresponding phenyl hydrazine. Right? Here is the reaction. Reaction of pyruvic acid with phenyl hydrazine, then one molecule of water removed and we get corresponding phenyl hydrazine product. Right? Then the hydrazine is heated with anhydrous zinc chloride or polyphosphoric acid to give indole to carboxylic acid, which upon decarboxylation yields indole. Right? यहाँ पर जब करस्पॉन्डिंग फिनाइल सब्सटीट्यूटेड हाइड्रीन्स बन जाती है तो फर्दर इसकी रिएक्शन जिंक क्लोराइड से करवाई जाती है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ अमोनिया निकल जाता है और ये इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। राइट? फिर इसका जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी गेट इंडोल। राइट? वी गेट 1H इंडोल। ओके, तो ये क्या है? फिशर इंडोल सिंथेसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट? फिर थर्ड आता है मेडलंग सिंथेसिस। ऑर्थोटोल्यूडीन इज treated with formic acid to form N-formyl toluene. Right? Here formic acid react with orthotoluidine, then one molecule of water removed and we get N-formyl orthotoluidine. This undergoes dehydration on heating with sodium ethoxide or potassium tertiary butoxide to yield indole. Right? फिर फर्दर इसकी रिएक्शन N-formyl ऑर्थोटोल्यूडीन की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम इथॉक्साइड या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से। तो एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको इंडोल मिल जाता है, 1H इंडोल फॉर्म हो जाता है। ये है आपकी मेडुलर सिंथेसिस। राइट? फिर आता है आपका फ्रॉम ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल एसिटल्डिहाइड। दिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल acetaldehyde with iron powder and sodium bisulfite to give orthoaminophenyl acetaldehyde, which cyclize spontaneously to yield indole. Right? First है reaction of orthonitrophenol acetaldehyde with iron powder or sodium bisulfite, then we get orthoaminophenyl acetaldehyde. Right? फिर इसका जो है साइक्लाइजेशन होता है स्पॉन्टेनियसली, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है निकल जाता है, देन वी गेट 1H इंडोल. राइट? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर आता है बेसिक करेक्टर एंड एसिडिक करेक्टर of indole. Right? Indole is a weak base and also a weak acid as like pyrrole. ठीक है? पायरोल की तरह ही ये जो है वीक बेस होता है और वीक एसिड भी होता है. Indole is a weak base since the lone pair of electrons of nitrogen atom contributes to the 4n plus 2 pi electron cloud, that means aromatic sextate. Thus the availability of these lone pair of electrons is decreased. Right? This is the basic reason for the weak base characteristic of indole. Okay? Indole also exhibit weak acidic properties. The weak acidic property is because of its formation of
पोटेशियम इंडोल विथ KOH, राइट। यदि हम ये कहते हैं कि इंडोल वीक एसिडिक करैक्टर शो करता है तो इसको हम इस रिएक्शन को देकर बता सकते हैं। जब इंडोल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो पोटेशियम इंडोल का फॉर्मेशन होता है और दिस शोज द वीक एसिडिक character of indole, right? Here is the reaction. Come to the next slide. फिर आती हैं chemical reactions, right? Chemical reactions से पहले हम थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हाईलाइट करते हैं। इंडोल जो है एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये ठंडे जल में बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है, यानी विलय हो जाता है। और इसकी जो स्मेल है वो फ्लावरी होती है, ठीक है, फूलों जैसी गंध आती है और इसलिए इसका जो उपयोग है वो आपका इत्र परफ्यूम्स बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल, राइट। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंडोल के अंदर होती हैं। ये कौन कौन सी पोजीशन इसमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए होती है? C3 वर्सेस C2, राइट। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक इंडोल एट C3 रादर देन एट C2, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक C3 कार्बन पर होता है इन कंपैरिजन टू C2। दिस इज द अपोजिट रिजल्ट दैट टू ऑब्जर्व बाय फॉर पायरोल्स, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक्स जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये पायरोल से अपोजिट होता है, बट कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ द इंटरमीडिएट्स फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कंसिडर्ड, राइट। फॉर अ रिएक्शन एट C3 the energy of activation of the intermediate is lowered because it is possible to delocalize the positive charge through resonance involving the nitrogen lone pair of electrons, right? ये condition C3 के लिए है। Now, this favorable situation is not possible in the corresponding intermediate for attack at C2, okay? Any attempt to delocalize the positive charge would now disrupt the 6pi electron system of the benzene ring, right? It is the reason कि C2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्यों नहीं होता है। यहाँ पर इंडोल के अंदर C3 जो पोजीशन है वो ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सूटेबल होती है। ये यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है नाइट्रेशन, ठीक है। जब 1H इंडोल इसका नाइट्रेशन C2H5NO2 के साथ इथाइल नाइट्रेट के साथ करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको 3 नाइट्रो 1H इंडोल मिलता है, राइट। तो ये है आपका नाइट्रेशन के बाद जो है नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 3rd पोजीशन पर होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सल्फोनेशन, जब 1H इंडोल को हम SO3 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी गेट 1H इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 3rd पोजीशन पर हो रहा है, राइट। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ
हेलोजिनेशन, जब 1H इंडोल का हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ SO2Cl2 और BrCH3OH के साथ करवाया जाता है तो भी हमको 3 हेलो 1H इंडोल मिलता है। जो हेलोजिनेशन है वो भी थर्ड पोजीशन पर होता है, राइट। फिर नेक्स्ट यदि हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो जब यहाँ पर 1H इंडोल इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ टिन टेट्राक्लोराइड SnCl4 तो हमको 3 एसिटाइल इंडोल मिलता है। यानी यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो थर्ड पोजीशन पर ही होता है, राइट। फिर आता है फॉर्माइलेशन। अब यदि हम 1H इंडोल की रिएक्शन HCN और HCl के साथ करवाते हैं तो हमको यहाँ पर 3 फॉस्फोराइल 1 इंडोल 1H इंडोल मिलता है। यानी यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वो थर्ड पोजीशन पर ही होता है। एंड दिस इज द विल्समियर रिएक्शन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो थर्ड पोजीशन पर ही होता है, राइट। देन कम टू द राइमर-टीमैन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर जब 1H इंडोल इसकी रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ करवाई जाती है तो 3 फॉस्फोराइल 1H इंडोल मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थर्ड पोजीशन पर ही होता है, राइट। इसी तरह से यदि अल्काइलेशन रिएक्शन की बात करें तो 1H इंडोल की रिएक्शन जब CH3I एल्काइल हैलाइड से करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड देन वी गेट 3 मिथाइल 1H इंडोल। यहाँ पर भी जो सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक वो थर्ड पोजीशन पर ही होता है। और यहाँ पर यदि हम देखें ये मैनेज रिएक्शन का यदि एग्जांपल लेते हैं 1H इंडोल की रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ और डाईमिथाइल अमीन के साथ करवाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है एंड वी गेट 3 डाईमिथाइल एमिनोमिथाइल 1H इंडोल बन जाता है, राइट। फिर यदि हम इसका रिडक्शन देखें तो माइल्ड रिडक्शन बाय जिंक एंड HCl। जब 1H इंडोल का रिडक्शन जिंक और HCl के साथ करवाया जाता है तो हमको यहाँ पर इसका जब रिडक्शन हम जिंक और इसके साथ करवाए जाते हैं तो यहाँ पर 2,3 डाईहाइड्रो 1H इंडोल बन जाता है। यानी यहाँ पर जो है ये आपका जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता है और यहाँ पर 3,2,3 डाईहाइड्रो 1H इंडोल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। बट कैटलिस्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैटलिस्ट हमने यूज में लिया है जिंक एंड HCl। यदि इसी रिएक्शन को हम इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम के साथ रिड्यूस करवाते हैं बोथ रिंग्स एंड फॉर्म्स ऑक्टाहाइड्रो इंडोल, ठीक है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब फॉर 1H इंडोल की रिएक्शन हम निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर तो केवल यहाँ पर जो है हमने देखा था कि 2,3 डाईहाइड्रो यानी केवल पायरोल जो है वो उसका जो है ये 2,3 डाईहाइड्रो बनता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दिस रिडक्शन प्रोसेस, ओके। फिर आता है डाईएजो कपलिंग। 1H इंडोल की रिएक्शन जब हम डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर हमको 1H इंडोल 3 फिनाइल डाईएजीन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कपलिंग प्रोडक्ट हमको मिलता है, ओके। तो
And you know, students, indole ring system is present as structural unit in many natural products of varying important फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. और जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इंडोल है ये क्या है, फ्लावरी स्मेल, यानी इसमें फूलों जैसी सुगंध आती है, इसलिए हम इसको परफ्यूम्स बनाने के भी काम में लेते हैं. राइट. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.